Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani. I welcome all the viewers to the lecture series of Law of Tort. In the present video, we will discuss the concept of malicious prosecution, which comes under the chapter of trespass to person. We have already discussed the various kinds of trespass to person, just like assault, battery, mime, and wrongful imprisonment. So this is a last kind of trespass to person. So let us proceed towards our topic. So as we know very well, every man has the right to deserve protection of his life and personality, and the other's obligation is to protect others' right. So it is the duty of each and every person residing in India to protect the rights of another person, as well as it is the right of each and every person residing in India to protect himself and his property. But sometimes this right is infringed. But there are many occasions on which the person's legal right is violated. So sometimes it happens some wrong with a person which we can say trespass to person. So amongst all the wrong which has been done against a person, one may be called as a trespass to person. So there are the following forms of trespass to person. As we know very well, today's topic is a malicious prosecution. So every person has a right and freedom to bring criminal to justice. No doubt, whenever the offense has been committed by any person, the victim is having a very right to bring criminal to justice. जब भी अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई क्राइम होता है तो विक्टिम का ये राइट है कि उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करे. ये विक्टिम का राइट है. दिस राइट हैज़ बिन गिवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है जो हर पर्सन को है. क्रिमिनल लॉ में ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ने ही एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, बट ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम एनी पर्सन कैन लॉन्च एन एफआईआर. इवन अ पर्सन सॉ एन ऑफेंस, ही इज़ ऑल्सो हैविंग अ राइट टू लॉन्च एन एफआईआर. किसी पर्सन ने अगर ऑफेंस होते हुए देखा है वो भी एफआईआर लॉन्च कर सकता है. बट इट डज नॉट मीन दैट एनी इनोसेंट शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस अननेसेसरीली. जैसा कि हमने देखा कि हर एक पर्सन को राइट है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस होता है तो एफआईआर लॉन्च कर सकता है, क्रिमिनल को सज़ा दिला सकता है. बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी इनोसेंट के अगेंस्ट में अननेसेसरीली कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करे. बट इट डजंट मीन्स दैट एनी इनोसेंट शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस अननेसेसरीली. हम किसी के अगेंस्ट में अननेसेसरीली क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं. So the tort of malicious prosecution came into use to check false accusation of innocent person. So on a many occasion, the false accusation has been leveled against a person. Innocent person is involved in the offense unnecessarily. बहुत से ओकेजन में हम देखते हैं कि किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है, उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हो जाती है. सो malicious prosecution came into existence only to check false accusation of innocent person. malicious prosecution एग्जिस्टेंस में इसीलिए आया है कि किसी अगेंस्ट में किसी पर्सन के अगेंस्ट में अगर फॉल्स एक्यूजेशन, गलत इल्ज़ाम लगते हैं क्राइम के, तो उसको चेक करने के लिए ये malicious prosecution का टॉट एग्जिस्टेंस में आया है. सो द डेफिनेशन ऑफ malicious prosecution इज दैट malicious prosecution is the institution against an innocent person of unsuccessful criminal proceeding without reasonable and probable cause and in a malicious spirit, that is from an indirect and improper motive and not in furtherance of justice, and causing damage of the plaintiff in person or pocket and reputation. So malicious prosecution, हम देखा जाए तो डेफिनेशन ये खुद कहती है कि malicious prosecution is the institution against an innocent person of unsuccessful criminal proceeding. कि ये जो
institution against an innocent person. So it is a one kind of institution of prosecution अगेंस्ट एन इनोसेंट पर्सन. किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट में हमने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लेवल किया है, उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया है एंड दैट इज अनसक्सेसफुल. हमने एफआईआर लॉन्च करने के बाद अगर वो इनोसेंट डिसाइड होता है बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, अगर हम वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट में विदाउट रीजनेबल कॉज, विदाउट प्रोबेबल कॉज के हम उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं इन अ मलिशियस स्पिरिट, उसके पीछे हमारा जो इंटेंशन है वो मलिशियस इंटेंशन है, बैड इंटेंशन है. हमको पता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन इनोसेंट है, उसके बावजूद हम उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हैं. दैट इज from an indirect and improper motive and not in furtherance of justice and causing damage of the plaintiff in person, pocket and reputation. So no doubt कि हम किसी पर्सन को इनोसेंट है ये पता होते हुए भी अगर हम उस पर्सन के अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं और जिसके वजह से वो पर्सन को अगर कुछ लॉस होता है, उसको मॉनिटरी भी लॉस हो सकता है, पैसे का भी लॉस हो सकता है, या उसको इन पर्सन लॉस हो सकता है, या उसके रेपुटेशन को भी लॉस हो सकता है. और इसके बाद जब हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में इनिशिएट कर रहे हैं और कोर्ट उसको इनोसेंट डिसाइड करता है, एज सुन एज द कोर्ट डिक्लेयर दैट पर्सन इनोसेंट, सच पर्सन इज हैविंग अ राइट to file a suit against another person for malicious prosecution. अगर मैं किसी पर्सन के अगेंस्ट में, किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करता हूँ, मुझे पता है वो इनोसेंट है और बाद में कोर्ट अगर उसको रिलीज करता है, कोर्ट अगर उसको इनोसेंट डिसाइड करता है, तो वो पर्सन मेरे अगेंस्ट में मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकता है. नाउ if the plaintiff wants to file a suit for the malicious prosecution, he wants to get a compensation for the tort of malicious prosecution, he has to prove following. उसको कुछ चीजें प्रूव करना पड़ेगा अगर उसको कंपेंसेशन चाहिए मलिशियस प्रोसिक्यूशन में. द फर्स्ट वन इज दैट द प्लेंटिफ वाज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट. इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ टू प्रूव दैट a certain criminal charges has been leveled against me by the defendant. उसको पहली चीज ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट में मैंने मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल किया हूँ, इसने मेरे अगेंस्ट में एक क्रिमिनल चार्जेस लेवल किया था, मुझे उसने क्रिमिनली लायबल ठहराने की कोशिश किया था. दैट द प्लेंटिफ वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच हैज टू बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ. Second one is that the proceeding terminated in favor of the plaintiff. Now the second thing which the plaintiff has to prove that the proceeding terminated in favor of plaintiff. Plaintiff has to prove that the proceeding which is leveled against me, जो criminal charges उसने मेरे against में level किया था, कोर्ट ने मुझे innocent decide किया. The proceeding terminated in favor of plaintiff. plaintiff को प्रूव करना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल चार्जेस डिफेंडेंट ने मेरे अगेंस्ट में लगाया था वो कोर्ट ने मुझे इनोसेंट डिसाइड किया, मेरे फेवर में कोर्ट ने केस डिसाइड किया. द थर्ड वन इज दैट द प्लेंटिफ वाज प्रोसिक्यूटेड विदाउट एनी रीजनेबल कॉज. द थर्ड थिंग विच द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट हैज प्रोसिक्यूटेड मी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज. जो क्रिमिनल चार्जेस ये डिफेंडेंट ने मुझ पर लगाया था वो विदाउट रीजनेबल कॉज थे, उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था वो क्रिमिनल चार्जेस मेरे अगेंस्ट में लगाने का, फिर भी उसने वो क्रिमिनल चार्जेस लगाया. तो ये थर्ड इसेंशियल है जो उसको प्रूव करना पड़ेगा प्लेंटिफ को. फोर्थ वन इज दैट द प्रोसिक्यूशन वाज विथ मलिशियस इंटेंशन. उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो प्रोसिक्यूशन था इसके पीछे उसका बैड इंटेंशन था, बिकॉज ही नोज वेरी वेल आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूँ, जब उसे पता था फिर भी उसने मुझे हरास करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए मेरे अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन लेवल किया था. मलिशियस इंटेंशन मस्ट बी देयर. एंड द लास्ट वन इज दैट द प्लेंटिफ वाज सफर्ड सम स्पेशल डैमेजेस. प्लेंटिफ को ये भी प्रूव करना पड़ेगा दैट द ड्यू टू द क्रिमिनल चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट मी बाय द डिफेंडेंट आई हैव सफर्ड सम स्पेशल डैमेजेस. मुझे मेरे रेपुटेशन को लॉस हुआ, मुझे पैसे का लॉस हुआ, इन पर्सन मुझे लॉस हुआ. सो दीज आर द 5 essential
which has to be proved by the plaintiff if he wants to get the compensation for the tort of malicious prosecution. So there are certain defenses for the malicious prosecution. The first one is that he had given information to the police authority in good faith. So there are certain defenses available for the defendant. Defendant can take such a defense. Defendant defense ले सकता है. उसमें पहला डिफेंस ये है कि he had given information to the police authority in good faith. डिफेंडेंट ये बोल सकता है कि मैंने जो पुलिस अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दिया वो गुड फेथ में थी. फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि सपोज अगर मैं किसी पर्सन को भागता हुआ देखता हूँ और उसके बाद कुछ देर के बाद मुझे पता चलता है कि पर्टिकुलर घर में चोरी हुई है और मैं बोलता हूँ कि हाँ ये पर्सन को मैंने भागता हुआ देखा, भले ही वो पर्सन किसी और चीज़ में भाग रहा हो, लेकिन उसके अगेंस्ट में मैंने क्रिमिनल चार्जेस लेवल किया कि हाँ इसने भागता हुआ देखा और इसने ही चोरी किया. ये मैंने जो इंफॉर्मेशन पुलिस को दिया ये गुड फेथ में. आई डजंट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट द पर्सन. वो पर्सन के अगेंस्ट में मेरी कोई दुश्मनी नहीं है. मैंने गुड फेथ में इंफॉर्मेशन दिया, भले ही बाद में अगर वो इनोसेंट डिक्लेयर होता है वो मेरे अगेंस्ट में मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल नहीं कर सकता है क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन पुलिस को गुड फेथ में दिया था. द सेकंड डिफेंस अवेलेबल फॉर द मलिशियस प्रोसिक्यूशन इज द प्रोसिक्यूशन ऑफ वाज अ सिविल नेचर. जो प्रोसिक्यूशन है वो सिविल नेचर का है. क्रिमिनल नेचर का अगर कोई केस हम किसी पे लेवल करते हैं तभी मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल होगा. द थर्ड वन इज देयर वाज नो मलाइस इन द प्रोसिक्यूशन एंड हैज नो इनमिटी विद द प्लेंटिफ. ज़रूरी है कि मलिशियस इंटेंशन होना ज़रूरी है. अगर मलाइस नहीं है, कोई इनमिटी नहीं है प्लेंटिफ से, तो ये डिफेंस हो सकता है मलिशियस प्रोसिक्यूशन का. द फोर्थ वन इज प्लेंटिफ डिड नॉट सफर एनी डैमेज. अगर प्लेंटिफ को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के वजह से अगर कोई लॉस नहीं होता है तो प्लेंटिफ सूट फाइल नहीं कर सकता है मलिशियस प्रोसिक्यूशन का. सो दीज आर द डिफेंसेस अवेलेबल फॉर द टॉर्ट ऑफ मलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड हियर वी कंक्लूड दिस टॉपिक मलिशियस प्रोसिक्यूशन. I hope you like this video, and if you like this video please hit the like button and subscribe our channel and hit the notification button so you will be notified whenever we upload our new video. Thank you very much.